सोदपुर के बेसरकारी अस्पताल में आर विद्यालय टीटागढ़ हाई सेकेंडरी की 18 साल तालबा कुमारी जूली की मौत से हुजूम का अस्पताल पर हमला जमकर एहतजाज। घर वालों ने डॉक्टर पर लापरवाही का केस दर्ज करवाया। टीटागढ़ आर विद्यालय हाई सेकेंडरी स्कूल की 18 साल छात्रा कुमारी जूली के 3 अप्रैल को हाई सेकेंडरी इम्तिहान देने के दौरान अचानक तबीयत खराब होने पर उन्हें सोदपुर के एक बेसरकारी अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां डॉक्टर ने खून की कमी बताकर घर वालों को 2 बोतल खून लाने को कहा। घर वालों ने खून लाकर दिया। सोमवार के रोज़ जूली का इम्तिहान अस्पताल के अंदर ही ली गई। बुध के रोज़ अचानक सुबह घर वालों को फ़ोन के ज़रिए इतला दी गई कि आप जल्द ही आइए, जूली की तबीयत खराब हो गई है, दूसरे अस्पताल सागरदत्ता में ले जाना होगा। जूली को सागरदत्ता अस्पताल लेकर घर वाले पहुंचे, लेकिन डॉक्टर ने जूली को देखकर कहा कि मरीज़ 1 घंटा पहले ही मर चुकी है। डॉक्टर ने मौत की तस्दीक कर दी। इसके बाद इलाकाई लोगों का एक हुजूम ने बेसरकारी अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर के खिलाफ लापरवाही का इल्ज़ाम लगाते हुए हंगामा किया। डॉक्टर के लापरवाही के खिलाफ घर वालों ने पुलिस पे केस दर्ज करवाई। नुमाइंदा इकरा, उर्दू न्यूज़, शेख सैफुल्लाह की रिपोर्ट। Sana Medical Hall. %10 discount on every medicine. Oxygen cylinder also available. কি হয়েছিল একটু যদি বলেন। মেয়েটাকে আমার একটু শ্বাসকষ্ট ছিল, হাঁটতে পারছিল না, সেই নিয়ে আমরা ভর্তি করতে নিয়ে আসলাম। এখানে ভর্তি করলাম, বললো কি হ্যাঁ ঠিক আছে ভর্তি করো, ঠিক হয়ে যাও, 2টো আমাকে ব্লাড লাগবে সোমবার। আমরা ব্লাড দৌড়ে 2টো ব্লাডটা নিয়ে আসলাম। তারপরে মেয়েটাকে পরীক্ষা সেই দিনে ছিল, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ছিল। মেয়েটা বললো কি আমি পরীক্ষা দেবো। এখানে দিদিরা বললো কি হ্যাঁ তাহলে তুমি স্কুলে ফোন করো, স্কুল দিয়ে লোক চলে আসে, পরীক্ষা তোমার নেবে। ওইখান দিয়ে স্কুল কি পরীক্ষা? হ্যাঁ কি পরীক্ষা? উচ্চ ক্লাসে পরীক্ষা। আচ্ছা, তারপর এইবার এসছে পরীক্ষা দিতে, সবাই এসছে, ওইখান দিয়ে বসে সবাই পরীক্ষা নিল। 1টা পর্যন্ত পরীক্ষা নিল, পরীক্ষা নিয়ে চলে গেল। এইটাই হচ্ছে। আর তারপরে ব্লাড কিছু চড়াইনি, ওষুধগুলো দিচ্ছিল। এখন দেখলাম 11টার সময় আমি ওইখানে গেলাম কি একটু দাড়ি কেটে আছে। এইবার দেখছি সঙ্গে সঙ্গে ফোন যাচ্ছে আমাকে, এই তাড়াতাড়ি আসো, খুব অবস্থা খারাপ আছে, একে নিয়ে যাও। আমি দৌড়ে উপরে উঠলাম, দেখছি মেয়েটা আমার ঝিমাচ্ছে, বলছে পাপা আমার গলায় আওয়াজ এরকম করছে। আমি বললাম কী হচ্ছে ডাক্তার, কী হচ্ছে? বলছে এখন তুমি নিয়ে চলে যাও সাগরদত্তে, না হলে আমি কোনো হসপিটালে লিখে দিয়েছি, সরকারি হসপিটালে লিখে দিয়েছি, তুমি কোনো হসপিটালে দেখাতে পারবো না। আমি বললাম কি কোথায় আমি নিয়ে যাবো? বলছে কি সাগরদত্তে, তাহলে নিয়ে চলে যাও। নিয়ে আসলাম, অ্যাম্বুলেন্স ডাল করলাম, বসালাম। যখন এখানে বসেছে মেয়েটা, শুয়েছে, শোয়ার পরে দেখছি মেয়েটা আস্তে আস্তে করে ঘুমিয়ে পড়লো। আমি দৌড়ে গেলাম, ডাক্তার দেখুন না কী হয়েছে মেয়েটাকে, দেখুন না। এবার ডাক্তার এসে হাতটা নগরটা ধরে তারপরে বলছে কি ক্রিটিক্যাল আছে, তুমি সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যাও। আমি তো বুঝে গেছি এইখানে গল্প হয়ে গেছে। আবার ওইখানে নিয়ে গেছি, ওইখানে ওরা দেখলো, দেখে বলছে মেয়েটা তো মারা গেছে, কেন নিয়ে আসছে? তার মানে কি এখানে ভুল ট্রিটমেন্ট করেছে? মানে কিছু আপনি বলুন। এটাই তো ভুল করেছে, সেই জন্য তো। ভুল না করলে মানে এখান থেকে যখন ট্রান্সফার করছে তখনই মারা গেছে? মারা গেছে। কি এটা নিয়ে কিছু বলেছে? কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কোনো কথা হয়েছে? হাসপাতালে কারোর সঙ্গে কোনো কথা হয়েছে? পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছেন? পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছেন? না এখন জানানো হয়েছে তো? আপনার নামটা? আমার নাম সঞ্জয় রাवत। আপনি কে হন? আমি বাবা। बच्चा को यही बात वैक्सीन लगा था उसको सितंबर में वैक्सीन लगा, तो स्कूल की तरफ से वैक्सीन लगा, तो बेटी हमारे जाके वैक्सीन लगवा ली। वैक्सीन लगाई तो आई तो उसको सुरहुरी वाला खांसी हुआ। बस खांसी हुआ तो हम क्या किए कि उसको दवाई मेडिकल से ले आकर दिए। जब फिर दूसरा का डोज लगवाने गए तो बोले कि डॉक्टर बाबू बेटी के मेरा तो तबीयत खराब है, खांसी हो गया है। तो उसे कोई बात नहीं, वैक्सीन से कुछ होता नहीं है, वैक्सीन इहो लगवा लो। दोनों डोज लगवा ली मेरा बेटी, लगवा ली प्राइवेट, फिर भी खांसी नहीं ठीक हुआ। फिर जाके हम बोले कि
डॉक्टर बाबू डॉक्टर से इलाज सबको से बोले कि इसका पापा से बोले कि देखा ना डॉक्टर को दिखा ले, तो हाँ डॉक्टर को दिखा ला। हम MBS डॉक्टर सागर दत्तो के डॉक्टर से लेडीज डॉक्टर से दिखाएं। उसको थोड़ा सीना उना में दर्द था, थोड़ा चनक रहा था। किस चीज का वैक्सीन लगा था? कोविड हाँ। यहाँ पे क्यों तो वहाँ से लेकर आए, जब हम बोल दिए तो वैसे डॉक्टर से दवाई चलाए तो सब हमारी बेटी ठीक हो गई थी। फिर उसके बाद में चलने में परेशानी, आप बैठने में परेशानी, बोलने में परेशानी, सांस के तनी परेशानी तनी थोड़ा। फिर डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर बोला कि इसको देह में तो खून नहीं है, इसको खून चढ़ाना पड़ेगा। तो ये सब हमारे लेके जुगाड़ नहीं है। अब प्राइवेट सरकारी में मत लेकर जाइए, प्राइवेट में लेकर जाइए कि प्राइवेट में पैसा लगेगा, 2 पैसा जल्दी से ठीक हो जाएगी। तो हम तो गरीब आदमी हैं, हमारे आदमी कमाते तो खाते, तो नहीं कमाए तो भूखे मर जाएंगे। इनको दुकान बंद करके यहीं पे आ गए हैं। अब बस हमारे बच्चा को लिए हम लेकर आए हैं, पैसा लगे तो। आपका बच्चा का नाम क्या है? जूली कुमारी, कितना उम्र है? 18 साल। तो परीक्षा, उसको परीक्षा था किस परीक्षा? 12 क्लास का 12, तो परीक्षा 12 क्लास का था। तो वो बोली कि मैम लोग से बोली कि आज हमारा परीक्षा था। तो मैम लोग बोली कि तुम तो परीक्षा दे सकती हो, यहाँ पर परीक्षा हो सकता है। तो बोली कि हम देगा। तो सर लोग बुला दिया, मास्टर लोग को बुला करके। अब मास्टर लोग यहाँ पर परीक्षा ले। हम बोले बाबू परीक्षा मन दो, तू जान बचेगा तो परीक्षा फिर होगा। तो ना मम्मी हम परीक्षा दे दो, हम ठीक बानी, एकदम ठीक बानी, परीक्षा दे दे भैया। रात में हमारे बाबू के ठीक रलसिया सब रात का से मम्मी कमर में दर्द बा, थोड़ा सा आराम बाटे। यहाँ पे कौन से तारीख को आपने एडमिट किया था? रविवार रात को। फिर हाँ रवि आतवार ओकरा 11:30 बजे नहीं 11:30 बजे रात का अतवार के दिन भर्ती किए हम उसको। और सोमवार को परीक्षा दी, ठीक थी, खाना वाना थोड़ा सा खैबो की। काल से उसका पेट में कमर में दर्द हुआ, अल्ट्रासाउंड का। तो बोल देना चाहिए ना कि उसको ठीक नहीं होगा तो कम लेकर हम जाएंगे। फिर क्या हुआ? फिर उसका बाद में अभी ठीक था, उसका बाद में बोल दिया कि लेकर जाओ सागर दत्तों में। मेरा बच्चा कहाँ है? सागर दत्त में क्या बोला? हम तो नहीं जानते बाबू कहाँ है। आपने यहाँ पे जो खून चढ़ाने के लिए बोला था, खून चढ़ा हुआ क्या? एक बोतल खून चढ़ा और बोतल खून वही है, खाली पानी चढ़ा है लो।